الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تامت. پتمس درسس مز پڑھو اس یم آئے مبارک گۄڈنیُک حصہ. بہرحال تات مز کریو اللہ تبارک و تعالیٰ ہن ارشاد تمن خواتینن ہند آیو حکم کرنے یم خواتین زن وقتی طور پر اکس انسانس پر یا اکس مردس پر حرام آسن چھ اور کسی وقت میں وہ اس کے لیے حلال بھی ہو سکتی ہیں. تات مز پڑھو اس گۄڈنیتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمحصنات من النساء ایسی عورتیں جو کسی دوسرے مرد کے نکاح میں ہوں. تم سارے خواتین یم زن کانسی نکاحس مز آسن بہرحال وہ دوسرے مردوں کے لیے تب تک حرام ہے جب تک کہ ان کو طلاق نہ ہو یا جب تک کہ ان کا شوہر انتقال نہ کر جائے اور وہ اپنی مرضی سے کسی دوسری جگہ نکاح کرنا چاہیں. الا ما ملکت ایمانکم اور دوسرا اس میں آیا تھا ایسی لونڈیاں ایسی کنیزیں جو جنگ کے موقع پر بہرحال برآمد ہوتی ہیں ان کا نکاح بھی ان کے سابقہ شوہروں سے خود بخود ٹوٹ جاتا ہے اور استبراء کے بعد ان سے بہرحال ہم بستری یا ازدواجی تعلقات قائم کرنا جائز ہے یا اگر کوئی ان سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کرنا بھی جائز ہے. اور ات مز کرے میں تفصیل بیان کہ والمحصنات مز کیا حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کھٹت تھومز اور نکاح کا وہ پورا فلسفہ جو اسلام کا فلسفہ نکاح ہے وہ اس ایک فکرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقید کیا ہے. کتاب اللہ علیکم اس کی بھی وضاحت ہو چکی تھی کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بیان کیے ہیں کہ کون سی عورت آپ کے لیے حلال ہے کن کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز ہے تو یہ عقل کی بنیاد پر اس کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کی طرف سے آپ پر حکم ہے فرض کیا گیا ہے یعنی ان عورتوں کو حرام جاننا یہ اللہ کی طرف سے ہے اس میں کسی عقل کا عمل دخل نہیں ہے. بہرحال ام پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ دویم حصہ یس زن ام آئے مبارکوک اس کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس یہ آئے مبارکہ حصہ اس آئے مبارکہ میں اسلام میں جو نکاح کا فلسفہ ہے یا نکاح کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا گیا ہے اور سارے کھوت جامع ترین آیت یس زن نکاح فلسفہ بیان کران قرآن پاک میں وہ آیت کا یہ ٹکڑا ہے. اور یہ تھیزے تو یاد جہاں دین اسلام کی کئی خوبیاں ہیں بہرحال تمو خوبصورتیوں مز تمو خوبیوں مز اخ بڑ خوبی سا یس زن اللہ تبارک و تعالیٰ پنہ دین اسلامس مز نکاح چہ شکل مز اسلامن سماج یا معاشرچ تعمیر کرمز. بہرحال اور ان قرآن کو پڑھنے کے بعد ایک انسان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اسلام سارے خود بہترین نظام حیات اور یہ وہ نظام حیات ہے جس میں کسی قسم کی کجی یا کمی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب یہ آیت کا دوسرا ٹکڑا اسی کے ساتھ ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وَأُحِلَّ اور حلال کیا ہم نے لکم آپ کے لیے ما وراء ذالکم ان عورتوں کو چھوڑ کر جو بھی عورتیں ہیں یعنی جن عورتوں کا ذکر اوپر ہو چکا ہے چاہے آپ کی ماں ہو امہاتکم و بناتکم و اخواتکم ان کی تفصیل جو ہم نے پیچھے پڑھی اور وہ عورتیں جو کسی دوسرے کی نکاح میں ہوں تو بہرحال ان عورتوں کو چھوڑ کر آپ کے لیے ہر عورت حلال کی گئی ہے. البتہ اس میں بھی ایک شرط ہے جو پہلی آیت میں ہم نے پڑھی تھی کہ 4 سے زیادہ نکاح ایسی عورتوں سے بھی بیک وقت نہیں ہوگا.
वउहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, अब अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए हलाल किया है इन औरतों को छोड़कर, मा वराअ ज़ालिकुम, जिनको आप चाहो। और ये भी याद रखिएगा, अगर अगरचे सारी दुनिया की औरतें इन औरतों को छोड़कर एक मर्द के लिए हलाल हैं, लेकिन इसके बावजूद कुरान ने कुछ क़यूद और भी लगाए हैं। सूरह बकरा में पढ़ियो ऐस कि एक मुसलमान मर्द वो किसी मुशरिक या किसी काफिर खातून के साथ निकाह नहीं कर सकता है। इसी तरह से एक मुसलमान खातून वो मुशरिक मर्द के साथ निकाह नहीं कर सकती है। हाँ, अलबत्ता मसलहत के लिए एक मुसलमान मर्द अहली किताब में से यहूद और नसारा के साथ निकाह कर सकता है, अगरचे आज के हालात में उनके साथ निकाह करना भी मकरूह है, यानी सुचन भाई जो बेहतर क्या है। बहरहाल इन तीन इस्तिस्नाई सूरतें, यानी एक तो हमने पढ़ा एक 4 से ज्यादा निकाह, और दूसरा मुशरिक गश्त आसन, और इनमें से कोई नहीं होनी चाहिए जिनका जिक्र हमने पिछली आयत में पढ़ा। तो इनको छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन औरतों को छोड़कर हमने आपके लिए तमाम औरतें हलाल की हैं, जिनसे आप चाहो उनके साथ आप निकाह कर सकते हैं। अलबत्ता हदीस में फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो तनकिहुल मरअतु बिअरबा, कि एक खातून के साथ या एक औरत के साथ 4 वजूहात की बुनियाद पर निकाह होता है। वली मालिहा, या तो उसके माल को देखकर, वली जमालिहा, या तो उसके जमाल हुस्न को देखकर, या वली और उसका नस्ब, वली नस्बिहा, या तो उसका नस्ब देखकर, खानदान देखकर, वली दीनिहा, या उसके किसको देखकर, दीन को देखकर। फज़फर बिज़ाति दीन, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वसीयत की और नसीहत की कि आप किस बुनियाद पर औरतों का इंतखाब करो, दीनदारी की बुनियाद पर। वो इसमें भी हमें इंतखाब करना होगा किस बुनियाद पर, दीन की बुनियाद। अगरचे शक्ल सूरत, अगरचे हस्ब नस्ब, खानदान, इनकी भी एक अहमियत अपनी जगह है, मगर सबसे पहली प्रायोरिटी यह सकात गैस आसी दीनदारी। वउहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, और हलाल किए गए आप पर इन औरतों को छोड़कर तमाम औरतें, ज़ालिकुम अन तबतगू बिअमवालिकुम, हाँ तो आप चाहो इन औरतों को बिअमवालिकुम, अपना माल देकर। अब ये बहुत ही अहम बात है, यानी इन औरतों को आप चाहो, चाहो का मतलब है निकाह में लाओ, कैसे, बिअमवालिकुम, माल खर्च करके। इशारा किसकी तरफ है, इशारा मोहर की तरफ है। याद है जो इस्लामन निकाह खतर क्या शराइत या क्या क़ऊद या क्या ज़ाबिते मुतय्यन करमित, उन ज़ाबितों में, उन शराइत में सबसे पहली शरत जो है वो महर है, यानी महर के बगैर निकाह नहीं होगा। हत्ता कि उलमा ने इस महर की इतनी ताकीद की है कि अगर 2 इंसानों का निकाह हो जाए, यानी एक मर्द और एक औरत का निकाह हो जाए, और खातून वन की महर महर जरूरत क्या, इसके बावजूद भी महर मर्द को देना पड़ेगा। और कितना महर देना पड़ेगा, अगर न अतन ताइबो किहन तो महर मिसल देना पड़ेगा। महर मिसल वन तथ महरस जो खानदान, उनके खानदान में इस जैसी लड़की का महर मुतय्यन किया जाता है। ये अमिश क्या ताकीद। और ये भी याद रखिए, अल्लाह ताला फरमाओ तो चाहो इन औरतों को, यानी इनको अपने निकाह में लाओ, अन तबतगू बिअमवालिकुम, अपना माल खर्च करके, यानी महर यानी खर्च करके। तो इससे पता चला कि निकाह के फलसफा इस्लाम सबसे पहली शर्त इसमें क्या है, वो महर है, यानी माल खर्च करना है। अच्छा, इस महर की हिकमत क्या है, या ये महर क्यों जरूरी है? अगर एक लड़का और एक लड़की राजी हैं, अगर वो निकाह करना चाहते हैं, तो माल खर्च करने की इसमें क्यों जरूरत है? बहरहाल शरीयतन ये महर अम खातिर थोमुत, क्योंकि असल में ये महर देने की वजह से इस मर्द को ये एहसास दिलाया जाता है, अमिस मर्दस ये एहसास दिन कि आप कोई खेल तमाशा करने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप कोई मस्ती करने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप एक मजबूत अहद इस औरत के साथ कर रहे हैं। इस अहद की अलामत क्या है? महर है। यानी तुशुक अय्याशी करने द्रामुत क्या, तुशुक पानी जिनसी ख्वाहिश पूरा करने द्रामुत क्या, बल्कि तुशुक अहदो पैमान अमिस खानदारी सहित करन और यहंदिस खानदान सहित करन कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, मैं इसके नानो नफका की जिम्मेदारी लूंगा, मैं इसकी हिफाजत करूंगा, इसके नामूस की, इसके इज्जत की, इसके आबरू की, और इसका नानो नफका मेरी जिम्मे है। इसकी अलामत के तौर पर ये क्या देता है? महर दो। जिशाक अलामत कि जैसे मैंने आज माल इस पर खर्च किया है, आइंदा भी मैं इस पर माल खर्च करता रहूंगा, और सारी माली कफालत यजन सगम सिंह जिम्मे।
तो एक तरह से महर देने से मर्द इस बात का इकरार करता है कि बासा छुस अमिस खानदारी हिज कफालत पानस जिम हेवन अमिस हिफाजत छुस बह पानस जिम हेवन। दयम कथ यह कि बासा छुस न यह सिर्फ अयशी करने खतर निकाह करने के बल्कि पुख्त अहदो पैमान कर छुस बह यह निकाह अमिस कर। एक तो इसमें यह फलसफा है। दूसरा फलसफा यह है कि इसमें एक तरह का औरत के लिए इकराम है। ये औरत के इकराम में या औरत की इज्जत अफजाई के लिए यह महर है। अब देखिए इस्लाम ने कितनी इज्जत इन औरतों को बख्शी है। इस्लाम च मर्दस यह एहसास व्यसन निकाह विज दिन कि एक खातून जो 20-22 साल या जवानी तक बुलूग तक पहुंचने के लिए एक अलग माहौल में पैदा हुई है, एक अलग माहौल पलेम, नाजो नखरू के साथ माँ बाप ने इसको पाला है, मगर सिर्फ एक ईजाब कबूल करने की वजह से ये अपना सारा अहलो अयाल सोरी खानदान सोरी देश सोरी इस जन अमस हमसायगिरी सोरी यस्तोन सोरी के त्रयित एक ईजाब कबूल की लाज रखते हुए ये सारे अपने खानदान को तज देती है और किसके पीछे पीछे चलती है? अपने खामद के पीछे पीछे चल। बल्कि तो अजीब ये वुचमुत सारी आज ताजुब जिन्हें निकाह किया होगा, जब एक इंसान निकाह करता है तो औरत को सबसे अजीज अगर कोई रिश्ता होता है वो उसके खामद का रिश्ता होता है। न तमिस पे मालिस रोजान तिस शफकत, न माज हिज तमिस तिस शफकत रोजान, न तमिस बेयन हिज तिस शफकत रोजान। सबसे ज्यादा उसको अटैचमेंट और सबसे ज्यादा उसको वाबस्ती किसके साथ होती है? अपने खामद के साथ। अब मर्द को यह एहसास दिलाया जाता है, मर्दा अम कुर्बानी हुंद ख्याल, पान हक दोहन दोहन चोरन दोहन बीस सिंदिस घरस मज रूजित क्या, बल्कि घबराहट वथन और वहां आपको वो दीवारें वो माहौल काटने को खाता है। मगर ये औरत ये लड़की आपके लिए अपने सारे खानदान को, अपने सारे माहौल को, अपने सारे कबीले को छोड़कर आपके पीछे पीछे चलती है। कभी एक शहर को छोड़ती है, कभी एक मुल्क को छोड़ती है और कुछ सातन ची दूर दराज अकिस जाय में बिल्कुल अजनबी माहौल आसन। इसलिए इस इकराम में, इसकी इज्जत में, इसकी तौकीर में और इसकी दिल जोई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों के जिम्मे क्या रखा है? महर रखा है, ताकि एमिसी इनामी तो इकराम करना। और ये भी याद रखिए, इकराम और इनाम के सिलसिले में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए कम से कम महर की तादाद मुतय्यन की है। अगरचे बाकी जो फुक़हा हैं उनके यहाँ महर की कोई भी रकम मुतय्यन की जा सकती है, जो हमने पीछे पढ़ा, कुछ पैसे भी, कुछ रुपए भी, या सोने की या त्रामू या क्या या इसके लोहे की बनी हुई अंगूठी भी महर हो सकती है। मगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसी आयत से ये इस्तेदलाल किया है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अन तबतगू बिअमवालिकुम, उनको अपना माल देकर चाहो अपने निकाह में लाओ। तो ये माल का इतलाक ऐसा होना चाहिए कि ये लगना चाहिए कि ये माल अमिस गई बासन कि मे कोर अमिस कोर इकराम, अमिस गई बासन कि मे कोर अमिस खतर कहनत क्या खर्च, वरना अगर वो एक पैसा दो पैसे खर्च करता है ये इकराम नहीं है। इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तिहंदिस फिकास में कम से कम महर रकम इस मुतय्यन वो कम से कम 10 दिरहम है। ये आज किस मुझ बनन 32 ग्राम चांदी, और आप इसमें बदलता रहता है ये रेट है, मगर इमाम अबू हनीफा कम से कम गए यूत महर आसन, ताकि लगे औरत को कि मेरा इकराम और मेरा ये तौकीर और मैं प्रोटोकॉल थोड़ा बहुत युवन देना। और ये भी आप याद रखें इसमें, इस आयत के ज़िमन में आम तौर पर समाज में अगर कोई महर ज्यादा रखता है तो उसे बिल्कुल हकीर निगाहों से देखा जाए, बुझता एम थो यूत महर, जबकि ज्यादा से ज्यादा महर की कोई भी हद शरीयत ने और कुरान ने मुतय्यन, बल्कि ये मर्द की इस्तिताअत पर रखा है। यमिस इस्तिताअत त्यूता है महर दे। अलबत्ता शरीयत ने एक मिजाज बनाया है लोगों का कि महर उतना ही हो कि मर्द पर भी बार ना बने, मर्दस्ती गश्ती बार। क्यों? अगर वो मर्द पर बार बनेगा तो औरत की इज्जत तो कहां वो करेगा खाक, क्या सबरी तमिस खतर क्या बोझ। इसलिए शरीयत ने एतदाल की राह इख्तियार किया, उतना ही महर रखा जाए जितना महर मिसल हो। महर मिसल सारे को मुस्तहब योन मान, महर मिसल उस महर को कहा जाता है जो लड़की के खानदान में उसी जैसी लड़की को हम उम्र, हम लियाकत, हम शक्ल का महर पहले से मुतय्यन चला आ रहा है उस जमाने में, तो उसी को महर मिसल कहा जाए। हाँ,
किसी को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा नवाजा है, वो चाहता है कि मैं अपने इस महर में बढ़ोतरी करूं, तो शरीयत ने इसकी कोई हद और इस पर लानतान करना, उन पर इस पर उनको टोकना कोसना, ये भी शरीयत से नावाकिफियत की दलील है। क्या ये तो मर्द की इस्तिताअत पर ये महर, हाँ अलबत्ता कम से कम महर की रकम कितनी है, 10 दिरहम 2 ग्राम चांदी आज के हिसाब से। इससे लगे कि मर्द ने इस औरत की थोड़ी बहुत तौकीर और कमीशन थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल जितना। तो ये तो पहली शर्त हो गई किसकी, निकाह की। गो निकाह छुन इस्लामस में सिर्फ जिनसी तस्कीन हासिल करने जरिए क्या, बल्कि इसके जरिए एक औरत को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, उसकी नामूस की, उसकी इज्जत की और उसकी तौकीर का भी ख्याल रखा जा रहा है। अब दूसरी शर्त जो निकाह के लिए है, अल्लाह तबारक व तआला फरमान मा वरा ज़ालिकुम, तो आप इन औरतों को छोड़कर किसी से भी निकाह कर सकते हैं, अन तब तक भी अमालिकुम, अपने माल को खर्च करके, यानी महर ये जंच उसको खर्च करके उनको महर देकर। अच्छा ये भी याद रखिएगा, ये समझाने खातिर महर से 2 किस्म, एक हो गया महर ऐसा जो उसी मौके पर फौरन अदा किया जाता है, उसे कहते हैं महर मुअज्जल, मीम वाव ताफिट हमजा करके मुअज्जल, और मुअज्जल निकला है उजलत से, यानी जो जल्दी अदा किया जाए। और सबसे बेहतर यही है कि महर गैसी मौकस पे ही अदा करना। और दूसरा है महर मुअज्जल, मीम वाव जीम मुअज्जल, जिसको थोड़ा ताखीर से अदा किया जाए। तो तथ महरस में मिसाल के तौर पर किसी ने 10 लाख 20 लाख या 2 लाख महर अमिश वनस लक्षी रपये, यह कहता है कि मैं बाद मगर अहद जरूर करना है कि मुझे इसको देना है। तो बहरहाल फिर मिन्नत समाजत करना औरत को कि मैं करी महर माफ, या अगर माफी करे ये, या कभी रोना रोता है अपने किसका कि चलन घर मज क्या, ताकि इमोशनली कर ब्लैकमेल कमिस खानदारी तमिस तर ओहो कमजोरी घर में। तो इस किस्म से महर माफ नहीं होता है, महर से रजामंदी सान माफ कर, जब औरत अपनी खुशी से और अपनी रजा से महर माफ करे। और हदीस में आया है कि जो शख्स महर सह थाय बकाय और नीयत भी इसकी ये हो कि मैं हेत कम तो दुत कम, थो 10 लाख थो 20 लाख, ये आज तक समाज में गोमुत महर रखते हैं 20 लाख 30 लाख, पत अंदर की हेत कम तो दुत कम। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐसा शख्स कयामत के दिन जानी उठाया जाएगा, यानी ये पग कयामत दो कत शक्ल में जन तम खानदारी से जरा, खानदारी कहाँ से, क्योंकि महर तो अदा ही नहीं हुआ, निकाह गो मगर ये निकाह इनकम्प्लीट है। और कयामत के दिन ऐसे लोग अल्लाह के दरबार में जानी होकर पेश किए जाए। ये अहमियत कमिच महरज, हत्ता कि मैंने पहले ही कहा अगर निकाह की मजलिस में महर मुतय्यन नहीं किया जाए, कहा जाएगा दोनों फरीक रजामंदी है, लड़की से राजी कि मेरा महर जरूरत, लेकिन ये नहीं चलेगा, तब भी महर मिसल वाजिब होगा किस पर, मर्द पर, इसको महर देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मजलिस में मौलवियों को मश्ती महर वन बाजी महर गोस मश्ती मुतय्यन कर, या फरीकन को महर मुतय्यन कर मश्ती, तब भी यह निकाह इनकम्प्लीट है, तब भी खुद से इस मर्द पर महर मिसल वाजिब हो जाएगा, यानी जो इनके खानदान में चला आ रहा है मिसल उतना तो कम से कम इसको देना पड़ेगा, तब जाकर ये निकाह मुकम्मल होगा। ये पहली शर्त इस्लाम ने इस निकाह के माहदे में रखी है। गो ये आम लुकन हिंद पर क्या कि वाल यस लड़कियां खुश गयम आनंद तुलित इथे पर, ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि निकाह के लिए 4 शर्तें हैं इस्लाम ने लगाई हैं। एक महर की शर्त है, दूसरा गवाहों की शर्त है, गवाह यानी जिनको वकील, तीसरा वली का होना, यानी लड़की बगैर वली के निकाह, बल्कि रसूल फरमाया हदीस में यमिस लड़की ने वली इजाजत वो निकाह है ही नहीं। जो ये भाग कर चली जाती हैं लड़कियां फिर कहीं निकाह कर लेते हैं, शरीयत की निकाह में ये निकाह होता ही नहीं है, क्योंकि वली की इसमें रजामंदी नहीं है। महर, ईजाब कबूल, वली की रजामंदी, यम क्या शरत, और फिर है ईजाबो कबूल। ईजाबो कबूल से जरूरी, क्योंकि ईजाबो कबूल ही तो असल में क्या है, वही तो असल में निकाह है। अलबत्ता शरीयत मिजाज बनोमुत ये कि ईजाब ये जन लड़की मजलिस में नहीं होगी, बल्कि उसकी तरफ से ईजाब कौन करेगा, सकर कस तम सुन वली तम सुन वकील आसे। बहरहाल ये 4 शर्तें हैं किसके लिए, निकाह के लिए। तो यहाँ पर एक का जिक्र आ गया, अन तब तक भी अमवालिकुम, तो आप इनको चाहो, आप इनको अपने निकाह में लाओ माल खर्च करके, मुहसिनीन। अब निकाह का दूसरा मकसद ये समझिए पूरा, मुहसिनीन। कल ही हमने मोहसिन की ये क्या माना पड़े, मोहसिन किसको कहते हैं, यानी हिफाजत में आना। तो दोनों का ये जो दोनों की नीयत जो होनी चाहिए,
मर्द की नीयत भी होनी चाहिए कि इस औरत के साथ निकाह करके मैं हिफाजत में आ रहा हूं। किस हिफाजत में आ रहा हूं? शैतान से मैं हिफाजत में आ रहा हूं कि वस हका बह जिनसी बेहरारवी मज क्या गसित मुबतला गसित मे ओस न जिनसी ख्वाहिशातन पे कंट्रोल कहें। अल्लाह ने मुझ में ये वदियत रखा है, ये जज्बा, लेकिन इसको जायज तरीके से पूरा करने का कौन सा रास्ता बताया है? निकाह। तो इस औरत के साथ निकाह की वजह से मैं हिफाजत में आ गया शैतान के मकर से, शैतान के फरेब। तो ये एहसान है उस लड़की का जिसने इसके साथ निकाह किया, क्योंकि इस मर्द का निकाह करने से शैतानी वसाविस और शैतानी हरबों से ये महफूज हो गया। वो इसी निकुक मकसद मुहसिनीन, ये किसके लिए है? मर्द के लिए। तवे फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमो ओ या माशर शबाब तज़व्वजू, यमजन जवानो शादी करो। जब आप बुलूगत को पहुंचो तो क्या करो? शादी करो। अगर इसकी ताकत नहीं है तो फिर रोज़ों का एहतमाम करो। तेरे क्या था? तिकाज अमी सि शर्मगाह क्या रोजन? कंट्रोलस मज, वरना शर्मगाह कंट्रोल में। और रसूलुल्लाह ने फरमाया यम शख्स निकाह कोर तेम कोर फकत इस्तक मतलब निस्फुल ईमान, तेम कोर नस्फ ईमान मुकम्मल। फल यत्तकी बिल बाकी, उसको चाहे कि बाकी मामले में वो अब बचे। गो निकाह करने से क्या गसन? नस्ब दीन गसन। इसीलिए यहाँ कहा गया निकाह का दूसरा मकसद क्या है? मुहसिनीन, यानी ये मर्द और ये औरत दोनों शैतान के मकर फरेब से दोनों हिफाजत में आते, और इनको इस जिनसी तस्कीन को पूरा करने का एक जायज तरीका मिल गया। बल्कि आप ज़ईफ़ रिवायत मगर है रिवायत। रसूलुल्लाह फरमो यम शख्स निकाह कोर, निकाह करने के बाद उसकी नमाजों का दर्जा या उसकी नमाजों का सवाब 25 गुना बढ़ाया जाता है। क्या? क्योंकि अभी तक तो वो अकेले नमाज पढ़ता था, लेकिन अब उसको नमाज पढ़नी है मगर हुकूक भी अदा करने हैं। गो तमिश खानदारी हुकूक अदा कर, तमिश खानदारी तिश खानदार से हुकूक अदा कर। तो उन हुकूक को अदा करते हुए जब ये अल्लाह की इबादत करेंगे तो इनकी इबादत का क्या मिलता है? सवाब बढ़ जाता है। बहरहाल वक्त को ज्यादा, सिर्फ 2 बातें मैं बताऊंगा। निकाह यम खवातीन ही जिक्र आओ उनको छोड़कर जिस किसी से भी चाहे उनसे निकाह कर सकते हैं, मगर बायक वक्त 4 से ज्यादा निकाह करने की इजाजत नहीं है। दूसरा, रसूलुल्लाह की हदीस कि कुमन 4 बुनियादन पे निकाह यवन करने, मगर तोह कत बुनियाद पे निकाह कर। तीसरी बात, जब भी निकाह होगा तो निकाह गश्न हंग मंगे के, बल्कि इसके लिए महर अदा करना जरूरी है। महर क्यों अदा किया जाता है? ये इस औरत के तम सिंदिस इस्तकबाल तम सिंदिस प्रोटोकॉल तम सिंद कुर्बानी बंद नजर थयित ये महर इस्लाम ने रखा है। और दईमा वन मुहसिनीन, मुहसिनीन को निकुह मकसद ये कि इससे दोनों ये मर्द और औरतें ये किस में आती हैं? ये शैतान के मकरो फरेब से भागकर अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं, ये मकसद। और औरत के लिए भी मुहसिनीन इस वजह से है कि औरत अभी तक घर में पड़ी हुई थी, लेकिन जब ये मर्द के साथ निकाह करती है, अब ये इस मर्द की हिफाजत में आ गई, इसकी नामूस भी हिफाजत में आ गई, इसकी जान भी हिफाजत में आ गई, और इसकी माशी तंगी या जंच उसकी फिक्र भी जाती रही और उससे भी उसको हिफाजत मिल गई। वो दोनों फरीक इससे क्या हासिल करते हैं? दीनो दुनिया की हिफाजत और दीनो दुनिया जंच तम सम तथ हिसारस मज दर। इससे पता चला कि निकुहुक मकसद छुन इस्लामस में सिर्फ जिनसी तस्कीन योतन पैद करन या बच्चे योतन पैद करन के, बल्कि निकाह का आला मकसद है। वो मकसद क्या है कि दोनों मर्द और औरत ये एक दूसरे के लिए दीनदारी में तरक्की करने का जरिया बने, और ये दोनों शैतान से बाकर अल्लाह के उस हिसार में और अल्लाह की हिफाजत में आए, और यम गस आख अकिस दीनदारी मज तकवियत आख अकिस वातनावन। बहरहाल इसके बाद है गैर मुसाफिहीन, इसकी तशरीह बहुत लंबी है, वक्त को विकने ज्यादा। इंशाअल्लाह मुस्तान जो तीसरा इस मकसद निकाह का है सो पढ़ो इस बार का पगा। रब्बुल आलमीन मगर दुआ कि वो हमें इस निकाह के वाकई जो मकासद कुरान ने बयान किए हैं इनको पूरा करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।